Hi guys, welcome back to Mehfil Jinn. My name is Taha. With me is my co-host Faria, Hey guys. and today we're going to be exploring a very interesting topic. We have Gibran with us, who is from Hunza, and he's going to be talking about shamanism and fairies in Hunza. Apparently, there are a lot of fairies in The Hunza, traditions related to shamanism in Hunza because and he has been exploring it since like his childhood, since he's lived there. like for clarifying it out for everyone out there, fairies se matlab not pariyan jo like fairy godmother type, but like Actual fairies, jinn related jinn, not fairies. even jinn, like chudail, Should chudail related, Yeah, like black magic, dark supernatural. magic. Basically, Yeah. shamanism is like a completely different religion. It's not connected to Islam as we researched. तो उनका full tradition वगैरह वो explain करेगा since he has been brought up in that environment. So, and without further ado, let us introduce you, Gibran. Hello everyone, this is Gibran. I am from Hunza basically, and I am a student of BS Economics and Finance in my third semester. Hey Jibran, so you told us prior to starting this इससे पहले शुरू होने से पहले कि you were going to talk about shamanism since you live in Hunza, वहाँ पे culture है इस चीज़ का. तो उससे related आप क्या stories या वहाँ का कुछ explain करना चाहेंगे? Basically, मैं shamanism को ही explain करना चाहता हूँ कि what is it and for what purpose people used to do this and how it starts and how it ends and the whole process. Okay. So basically, as you said, it's a tradition to perform in late 90s and before 90s, you can say that. And nowadays, it has just become an act for the tourism or for tourists to show them how it happens. But before that, it was used to predict the future, and it was believed that the fairies, which were living in the mountains, used to tell about the stories about the future, that what's going to happen and what will happen in the future. So a person, he was in our language, we used to call him Bitan, Bitan. So he was the person who used to perform whole process, and he was supposed to communicate with the fairies and tell the people about what's going to happen in the future. तो ये ट्रेडिशन था जो स्टार्ट होता था विद म्यूजिकल परफॉर्मेंस. ही यूज टू डांस बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस, एंड मीन वाइल डांसिंग ही यूज टू गेट लॉस्ट, कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता था कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता था कि क्या होने वाला उसके साथ. फिर वो लेटर ऑन नाचते नाचते एक ऐसा स्टेप आता था विच वाज, यू कैन से दैट विच वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट प्रोसेस. उसमें ये होता था कि एक नेचुरल हर्ब होता है, गिलगित में मोस्टली यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेगनेंस. कि आप घर से अपनी, अगर पहले ज़माने में ऑब्वियसली कमर्शियल जो फ्रेगनेंसेस होती थी वो अवेलेबल नहीं होती थी गिलगित में, तो लोग नेचुरल मीन्स पे डिपेंडेंट होते थे. तो वो यूज़ करते थे अपने घर से अच्छी खुशबू के लिए. इट वाज अ नेचुरल हर्ब जिसको जला के उसके धुएं से वो फ्रेगनेंस आती थी. तो ही यूज़ टू इनहेल दैट स्मोक इन हिम, जो कि उसको माइंड को बिल्कुल एक आप यू कैन से दैट एक काइंड ऑफ सिडेट कर जाता था वो. तो वो इनहेल करते 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 जैसे आजकल के आप कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ नशा, कि वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता था उस चीज़ में. फिर वो ही यूज़ टू कम्युनिकेट विद द फेरीज, और वो एक स्पेशल लैंग्वेज होती थी जिस पे वो उसको लग रहा था कि वो कम्युनिकेट करती हैं. और वो जब कम्युनिकेट कर जाता था, फिर लेटर ऑन वो लोगों के साथ वो उसी लैंग्वेज में जवाब देता था कि ये वो कह रही हैं. वो लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता था जो ऑल द वो नॉर्मल लाइफ में नहीं बोलता था, ना उसको आती थी. वो एक ऐसा लैंग्वेज था, बस वो एक उसी स्पेशल मोमेंट पे बोलता था. उस लैंग्वेज को कहते हैं शिना. Okay. जो शिना, जी, right? शिना, अच्छा. जो नॉर्मली आप जैसे एक प्रोविंशियल लैंग्वेज होती है, ऑल दो गिलगित में 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. तो शिना इज़ वन ऑफ देम, बट इट वाज नॉट नेसेसरी कि जो भी पर्सन होता था जिसको बिटन कहते या उस प्रोसेस को शैमनिज्म कहते हैं, और जो बंदा होता था उसको शैमन कहते थे. तो जो बंदा होता था उसको वो लैंग्वेज आए, लेकिन उस प्रोसेस में वो लैंग्वेज बोल जाता था. अब आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स और हाउ इट यूज टू हैपन देयर. तो फिर
जो ही वो उस लैंग्वेज में प्रेडिक्शंस कर देता था, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोग बैठे होते थे जिनको वो लैंग्वेज समझ आ जाती थी, तो वो उस चीज़ को नरेट करते थे लोगों के लिए कि वो ये बोलना चाह रहा है आगे। फिर नेक्स्ट स्टेप वाज कि उसको ही वाज गिवन अ गॉड्स हेड, कि एक गॉड को आप स्लॉट ज़बह करते थे और उसको उसी तरह उसको दे देते थे। तो यूज टू ड्रिंक द ब्लड ऑफ द गॉड, और फिर प्रोसेस थोड़ा फर्दर आगे चला जाता था और वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल लॉस्ट हो जाता था। वो एक आप कह सकते हैं एक सेंसिबल स्टेज होता था जिसमें वो लॉस्ट, उसकी जान पे भी ख़तरा हो जाता था कि बहुत सारे लोग उस प्रोसेस में वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और दे लॉस्ट देयर लाइव्स। और वो गॉड सॉरी गॉड का जो ब्लड है वो उसको पी जाता था, और देन अगेन ही यूज्ड टू कम्युनिकेट विद दी फेरीज। और इसमें ऑल्दो इट्स कुछ लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट लगेगा कि गॉड्स का ब्लड पी रहा है या बकरे का सर वो डायरेक्टली ले रहा है, उसके खून पी रहा है, लेकिन इट वाज ट्रेडिशन जो कि बहुत ही कॉमनली फॉलो किया जाता था हुंजा में फॉर द प्रेडिक्शंस। और बहुत बार ये हुआ कि सच भी हुई ये चीज़ें। जैसे अब जो मोस्ट फेमस 3 प्रेडिक्शंस थी जो बहुत लोगों, आप अगर हुंजा के किसी बंदे से पूछे तो उनको पता होंगी। द फर्स्ट प्रेडिक्शन वाज, उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि हुंजा से लंदन तक यू कैन से कि एक एग रोल करता जाएगा, रोड ऐसे एग रोल करते हुए जाएगा। ओके ओके, अच्छा, तो ये कैसे हुआ? इसकी प्रेडिक्शन उसमें ये लोग इस तरह नरेट करते हैं कि जो आप कह सकते हैं सी पे 1 बेल्ट 1 रोड, तो जो हुंजा से होते हुए जा रहा है गवादर, उधर से आगे फिर आप फर्दर यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज में कनेक्ट कर जाता है। तो इट वाज काइंड ऑफ रिलेटेड प्रेडिक्शन। फिर लेटर ऑन उसने एक प्रेडिक्ट किया था कि एक फ्यूचर में उड़ते हुए वो जाएंगे, स्टील आयरन मटेरियल्स उड़ेंगी फ्यूचर में, आयरन मटेरियल उड़ेंगे, जहाज। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे तो ऑब्वियसली बहुत कॉमन नहीं थी चीज़ें। ये कितने पुरानी बात होगी जिब्रान? आप कह सकते हैं बिफोर 80s और अर्ली 80s में ये प्रेडिक्शंस कीजिए। आई थिंक हाँ, हुंजा में उस वक्त एयरप्लेन्स वगैरह की इतनी नॉलेज होगी भी नहीं, तो आई थिंक इट्स लाइक हाँ, क्योंकि उस टाइम पे लोग पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड, तब तो पाकिस्तान भी उसमें नहीं आया था, वजूद में नहीं आया था, लेकिन प्रिंसली स्टेट सोर्स थी। बिल्कुल। तो लोग बस अपने स्टेट तक ही महदूद रहते थे, अपने इलाके तक। तो एजुकेशन बहुत कम थी वहाँ पे, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों की, और बाकी दुनिया से वो कट ऑफ थे, बहुत कम ही लोग ट्रेवल करते थे। जी। तो उनको अगर हुंजा से आप कह सकते हैं लाहौर, इस्लामाबाद या जो सिटीज़, इस्लामाबाद तो नहीं कहेंगे क्योंकि बाद में बना है, लाहौर, पिंडी या इस तरह की सिटीज़ में ट्रेवल करना होता था, उनको बहुत टाइम लगता था, क्योंकि तवील प्रोसेस होता था, वो उसको गुजर के फिर वो पहुंचते थे कहीं। बिल्कुल, क्योंकि रोड्स नहीं थे, लोग बाय रोड ट्रेवल करते थे, बाय हॉर्सेज एंड अदर मटेरियल मोड्स ऑफ कन्वीनियंस। तो ये एक प्रेडिक्शन थी। और तीसरा प्रेडिक्शन जो ये था कि हुंजा में पहले ज़माने में घर डबल स्टोरीज नहीं होती थी, सिंगल स्टोरीज होती थी, और उसमें छत पे एक काइंड ऑफ होल छोड़ा जाता था फॉर द पर्पस ऑफ लाइट, दिन को रोशनी होगी अंदर। जी, लाइक स्काईलाइट। तो उसमें उसको हमारी ज़बान में कहते हैं सगम, जो मिडल ऑफ द फ्लोर सीलिंग होता था, जो कि दिन को पर्पस ऑफ लाइटनिंग होती थी। तो उसने ये कहा था कि इन फ्यूचर ये सगम का जो क्या कहते हैं स्टेटस होगा, या जो ख़त्म हो जाएगा, इरेडिकेट हो जाएगा फ्यूचर में, विदाउट ये सगम घर बनेंगे हुंजा में और नॉर्मली गिलगित में। तो ये 3 प्रेडिक्शंस बहुत लोग कॉमनली लोगों के अंदर पाई जाती, लोग इस पर बिलीव करते। एक और था जो अभी तक लोगों को नहीं लगा कि प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें ये था कि जो घोड़ा होता है उसके जो गर्दन होती है, सॉरी नॉट गर्दन बल्कि उसके जो घुटना होता है, वहाँ तक खून भरेगा, ऐसी जंग होगी यहाँ पे। अच्छा, अब ये नहीं पता कि कब होगी या किस सेंस में ली गई इस बात को। जी, लेकिन ये एक प्रेडिक्शन थी जो कि एक फेमस हुंजा के शमन था, उसने ये चीज़ें प्रेडिक्ट की थी, 4 चीज़ें। तो अब ये नहीं पता कि कब होगा। ऑल्दो बहुत ही अनकॉमन चीज़ें लगेंगी ये कि लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फेरीज से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इवन लोग ये भी बिलीव नहीं करते कि फेरीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो उस टाइम पे लोग कम्युनिकेट करते थे इस चीज़ पे, और द प्रोसेस इज़ नॉट नॉर्मल फॉर अदर पीपल कि आप खून पी रहे हो, आप स्मोक इनहेल कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो डिफरेंट लैंग्वेजेस में। बट जिब्रान, इसमें मेरे कुछ सवाल हैं यार। जी पूछे। सही है,
देखो इन द सेंस कि अगर आप कोई मतलब स्मोक इनहेल करें, जैसे आप कोई नशा इंड्यूसिंग इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हेलुसिनेशंस हो रही हैं और उसमें वो बड़बड़ा रहा और समथिंग लाइक दैट. हेलुसिनेशन अगर हो रही थी तो अगर एक बंदा हेलुसिनेट कर जाता है तो वो एक डिफरेंट लैंग्वेज में बात कैसे कर पाएगा? हाँ ये बात, यही जो बात है ना, आप एक ऐसी लैंग्वेज में जो आप नॉर्मली बोलते नहीं है, आपको आती ही नहीं है, और आप उस पर बात कर रहे हो, जी जी, पूरी कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो ये एक उस लैंग्वेज का नाम क्या बताया था आपने? शिना. ये जो शिना जो लैंग्वेज है, ये क्या स्पेसिफिकली शमन्स बोलते हैं या फिर ये एक ओरिजिनेटेड लैंग्वेज है? नहीं, गिलगित में ये लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, लोग बोलते हैं, ऑल्दो मुझे भी आती है, लेकिन जो बंदा होता था उसमें जैसे आपको बताया कि लोग अपने डिस्ट्रिक्ट तक या अपने स्टेट तक ही महदूद होते थे, लोग आपस में स्टेट्स में इतनी कम्युनिकेशन होती नहीं थी, तो स्टेट्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती थी। तो हुंजा जो स्टेट था उसमें टिपिकली यही लैंग्वेज जो ये लैंग्वेज बोली नहीं जाती थी, कॉमन नहीं थी ये लैंग्वेज, तो लोगों को आती नहीं थी ये चीज़, तो लोग डिफरेंट स्टेट से लोगों को बुलवाते थे ताकि वो नरेट कर सके इस लैंग्वेज को, और शमन्स को तो ऑब्वियसली वो आती नहीं थी लैंग्वेज। अच्छा जिब्रान, तो मुझे ये बताओ कि फिर लाइक दिस इज सम वेरी लाइक creepy dark magic stuff going on right now, तो have a scientific explanation for everything you said except the language, सही है, but what's your take यार, you know fairies अभी भी हैं नहीं है, like because fairies predominantly are like supernatural beings. अब ये है कि अब जाहिर सी बात है लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाते, लोगों को लैंग्वेजेस आनी स्टार्ट हुई हैं, तो काइंड ऑफ एक्ट मैंने आपको पहले बताया था, इट हैज़ बिकम एन एक्ट फॉर टूरिस्ट। सही। अभी इतना वैलिड या क्रेडिबल नहीं माना जाता इस चीज़ को, क्योंकि लोग हो सकता है वो एक्ट कर रहे हो उस चीज़ वो ऐसा बनने का। जी, तो लोग अभी इस चीज़ पे इतना बिलीव नहीं करते, क्योंकि ऑल्दो अब मुझे भी वो लैंग्वेज आती है जो वो बोलते थे, अब मैं भी ये एक्ट करूँ तो जाहिर सी बात है लोग कैसे बिलीव करेंगे। Exactly. जो आपने बोला कि शमन्स की डेथ हो जाती थी वगैरह, वो एक कोई ऐसा आपका स्पेसिफिक ओकेजन या आपने सुना हो या पढ़ा हो या कुछ ऐसा किया हो? स्पेशल एक इस पे स्टोरी थी जिसपे अमीर ऑफ हुंजा जो किंग होता था, उन्होंने एक इवेंट रखा हुआ था इस पे प्रेडिक्शंस पे, तो जो शमन था वो उसमें इतना लॉस्ट हो चुका था कि एक मोमेंट पे ही स्टार्टेड टू रन टुवर्ड्स द माउंटेन्स, वो माउंटेन्स तरफ भागा और उसके बाद उसको किसी ने देखा ही नहीं कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। लोग ये बिलीव करने लगे कि फेरीज उसको अपनी तरफ लेके गई हैं। फिर काफ़ी साल बाद अगेन एक ऐसा इवेंट रखा गया जिसमें प्रेडिक्शंस हुई और जिसमें म्यूज़िकल शो हुआ, म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस हुई, तो वही बंदा वापस माउंटेन से भागता हुआ उस इवेंट में आया। Did he say anything, मतलब स्पेसिफिकली कि क्यों मैं भागा था या कुछ भी नहीं? नहीं, बस वो भागा, और जब वो वापस आया तो देयर वाज, आप कह सकती, एक लकड़ी का टुकड़ा था उसकी आंख में, और उसने वो निकालने तक की वो नहीं की थी, क्या कहते हैं उसको, कोशिश नहीं की थी। तो मैं हुंजा इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। जैसे आपने बात की कि फेरी जलपरी तो जाहिर सी बात नहीं होंगी, क्योंकि हुंजा इज माउंटेनस एरिया, वहाँ पे जलपरी परियां, हाँ फेरीज। तो हुंजा में जैसा चुड़ैल ये बहुत पाई जाती थी, बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने किसी इंसान को खाया, या ऑल्दो वो खाने का मतलब ये नहीं कि उसको चीड़ फाड़ के खाया, लेकिन देयर वाज अ स्पेशल प्रोसेस, वो एक उनका एक स्पेशल एक्ट था जिसके ज़रिए वो इंसान को चूस लेती थी, कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन विद इन सम डेज आप मर जाते थे। तो ये आपने बिल्कुल सही बात की कि रात को पीक कर रही थी, तो हो सकता है कोई सोल या कोई फेरी जो सर्टेज हो गई, और ये कॉन्सेप्ट बहुत कम पाया जाता है उन समय, कि कोई रूह भटक रही हो या कोई, लेकिन चुड़ैल का कॉन्सेप्ट बहुत था पहले। अभी तो मुझे भी रात को अगर मैं 10-11 बजे बाहर निकलूँ, मुझे कोई औरत नज़र आए, मैं वहाँ से सीधे भाग जाऊँगा, क्योंकि मैंने इतनी स्टोरी सुनी है, और इवन मेरी फैमिली में 1-2 एग्जिस्ट करती थी जो काफ़ी मशहूर थी इन चीज़ों में, तो जाहिर सी बात मैं भी कभी ना जाऊँ, पता नहीं वो क्यों गए रात के बाद इतने लेट। यार अब मुझे तो डर लग रहा है, मैं पिछले साल हुंजा में था और मैं रातों को बाहर होता था,
तो थोड़ा डर लग रहा है वो सब तो। जो हुंजा है वो उसमें जो ट्रेडिशंस है वो साउथ एशियन ट्रेडिशन से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे आप पहले आप सब कॉन्टिनेंट कह सकती हैं, सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे अलग ही ट्रेडिशन चल रही होती हैं। हुंजा में जो लोग हैं वो माइग्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज लाइक इराक, पर्शिया, ईरान, वहाँ से माइग्रेटेड हैं। तो उनकी ट्रेडिशन जाहिर सी बात है साउथ एशियन कंट्री से डिफरेंट ही होंगी इंडिया पाकिस्तान से। तो आपके लिए काफ़ी अम्यूज़ होगा कि कैसे हो सकता है। तो अच्छा नहीं जिब्रान, मेरे पास एक सवाल आ रहा है इसको आपकी जो बात सुन के, कि ये जो ख़वातीन जो होती हैं जिनके पास ये पावर्स होती हैं, ये जो मैं चुड़ैल कहना नहीं चाह रहा लेकिन जो चुड़ैलें होती हैं सही है, वो डू यू थिंक लाइक दे आर बाय बर्थ, या कुछ वो समथिंग हैपेंस टू देम ड्यूरिंग देयर लाइफ, या कोई दे पिक्ड अप और सिलेक्टेड, मतलब हाउ डू यू थिंक दिस इज कंटिन्यूइंग? ये बाय बर्थ होती हैं। बाय बर्थ होती हैं, लाइक जेनेटिकली? जेनेटिकली नहीं कह सकते, लाजमी नहीं है अगर एक है तो उनकी बेटी भी हो, लेकिन कुछ में स्पेसिफिक होती है और उनमें बाय बर्थ ही होती हैं। अब अभी तो जाहिर सी बात है ये अटैक्स और ये चीज़ें बहुत कम हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों में शऊर आया, लोगों ने ये चीज़ें रियलाइज़ की, लोगों ने डिसओन की इन चीज़ों को। तो अब ये बिलीव किया जाता है और मोस्टली देखा भी गया है कि अगर एक चुड़ैल एक एरिया में है और उस एरिया में किसी की डेथ होनी होती है तो उस चुड़ैल की ना तबीयत बहुत ख़राब होती है, उनकी तबीयत एक्सट्रीम पे चली जाती है। मतलब उनको पता चल जाता है कि उस एरिया में किसी न किसी की डेथ होने वाली है। और तो इससे अब हमारे एरिया में भी एक हैं दादी जिनकी तबीयत एक्सट्रीम पे चली जाती है, तो लोग प्रेडिक्ट कर जाते हैं कि किसी की बारी आई है। बट एक इसमें मुझे ये है कि पता कैसे चलता है कि लाइक अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई बच्ची पैदा हुई है, कि उस पर चुड़ैल है या कोई इस तरह की चीज़ है? आई थिंक वो स्पेसिफिकली ऑड एक्ट करना शुरू कर देते हैं, काइंड एक्सक्लूडिंग देमसेल्व्स फ्रॉम अदर पीपल। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो की तबीयत खराब हो जाती थी किसी के फौत होने पे, तो इससे नहीं, वो तो इससे लोग प्रेडिक्ट पहले भी होती थी। अब तो जाहिर सी बात वो अटैक वाला फैक्टर चला गया, लेकिन ये वाला फैक्टर तो है कि तबीयत खराब हो जाती है। जी। तो ये बचपन से ही होता है या बड़े होके होता है? ये आप कह सकते हैं टीनेज में शुरू हो जाता है। टीनेज में तबीयत ख़राब होना, अटैक करना। तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज है इस पे अटैक की। किसी को खाया कोई, मतलब किसी दो माँ बेटी जो चुड़ैल थी उन्होंने मिलके एक लड़के को खाया या एक औरत को। तो अब खाया वर्ड इस कैनिबलिज्म में आ जाता है कि उनको चीड़ फाड़ के, लेकिन टिपिकली लोग खाते नहीं थे उनको। ये 1984 में ये एक अमेरिकन था, ब्रिटिश था, उसने ये शूट की थी और ये एक्चुअल में प्रेडिक्शन के लिए की गई थी। अच्छा। तो ये एक्ट नहीं था टूरिस्ट के लिए। अच्छा, बहुत पुरानी है वीडियो, लेकिन लाइक देखने में ये काफ़ी वो लग रही है, जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा दिल दहलाने वाली, कि एक बंदा ऐसे घूम रहा है बकरे का सर लेके और उसमें मतलब डायरेक्ट खून पी रहा है। तो दैट्स लाइक अगर अब देखो मेरी तो सीधी बात है भाई फट जाएगी। Oh, and this is the goat that they're sacrificing. Yes. Oh yeah, he looks in the beginning with ज़्यादा jolly लग रहा है, like he's happy to be there. But like you know, as like देखो थोड़ा सा आगे करके जब तुम जाओगी तो तुम देखोगी कि it's like कि वो अलग ही धुन में है और उसको होश नहीं है और उसका शक्ल भी ऐसा ऐसा और लाइक अजीब सी होती जा रही है। बहुत हॉरिफिक होती जा रही है उसकी। हाँ, तो मतलब yeah, he's drinking the blood now. Yes. And what is he doing to the musician? वो जो ढोल नजर आ रहे हैं आपको, वो बजा रहे होते हैं, तो वो नाच अचानक में आके वो ढोल के पास आते तो वो रुक जाते थे। तो वो फिर उनको उस लैंग्वेज में बता रहा होता था कि प्रेडिक्शन क्या हो रही है, क्या अपनी मतलब वो बता रहा होता था कि उनको फेरीज ने क्या बताया। तो वो रुक जाते थे, सारे खामोशी होती थी। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करता था उस लैंग्वेज में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो इसलिए उस ढोल के पास आके या तो वो उस धुन को सुन रहा होता है, फिर वो अचानक में रोक देता है, फिर वो आगे अपनी बता रहा होता है कि उन्होंने क्या बताया उसको, फेरीज ने क्या बताया। ये बहुत ही फेमस, इनका नाम मैं भूल गया हूँ, ये बहुत फेमस शमन थे उनका के। अच्छा, यहाँ पे लिखा होगा अगर डिस्क्रिप्शन में अगर नाम लिखा है तो उनका नहीं, इनका नाम इधर नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये है कि आई वांटेड टू आस्क कि जो शमन होते हैं दे आर ट्रेन्ड सिंस देयर चाइल्डहुड फॉर दिस, या फिर वो खुद सीखते हैं या खुद सीखना चाहते हैं, या इनका फैमिली ट्रेडिशन होता है? नहीं, ये ट्रेडिशंस भी नहीं कह सकते, ये भी कुछ ही स्पेसिफिक लोग होते हैं जो कर सकते हैं, जो ट्रेंड भी नहीं कहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेनिंग तो इससे ट्रेनिंग से क्या रिलेशन है? क्योंकि एक आप कह सकती हैं स्पिरिचुअलिटी को आप ट्रेन तो नहीं कर सकते या पैरानॉर्मल चीज़ों को ट्रेन तो नहीं कर सकते। और
बहुत सारी बिलीव्स हैं जो आपको बहुत अनकॉमन लगेंगे, जैसे मेल आइस और फीमेल आइस। अगर आपने कभी सुना है इस चीज़ का? नहीं, किस रिलेशन से? बर्फ, मेल आइस, अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो मर्दाना बर्फ और जनाना बर्फ। नहीं, इसका नहीं सुना ना? ये क्या होता है? बर्फ में भी किस्में होती हैं यार। अच्छा, ये क्या सीन है? ये बिलीव की जाती थी कि हुंजा में कि अगर मेल बर्फ और फीमेल बर्फ जब आपस में टकरा जाते थे, एक बहुत ही मैसिव लेवल पे एवलॉन्च आता था। जैसे लास्ट टाइम एक एवलॉन्च आया था हुंजा हसनाबाद में, जिसने पूरे एक रिवर को ब्लॉक किया हुआ था। फिर लेटर ऑन जब वो बर्स्ट आउट हो गया तो वो एक पूरे पुल को अपने साथ लेके गया था। जी 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 जी। तो वो एक बिलीव किया गया था कि जब मेल बर्फ और फीमेल बर्फ जो आपस में अटैच हुई थी, फिर ये एक बड़ा सा एवलॉन्च आया था। तो ये तो एक बिलीव थी, इसमें आई डोंट नो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है या नहीं है, लेकिन ये पहले ज़माने में लोग मानते थे इस चीज़ को। और हुंजा में बहुत सारी होली प्लेसेस भी हैं, मतलब कुछ ऐसी जगह जो मानी जाती है होली, जिसमें आप कह सकते हैं कि फेरीज का राज हो या वहाँ पे फेरीज एग्जिस्ट करती हो। वहाँ पे अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर जाएं जो आप कह सकते हैं बिहेवियर वाइज या कोई इंडिसेंट एक्ट करे, तो वहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन आ जाती है। ओके। तो उस प्लेस को या उस बंदे को? उस प्लेस पे। अच्छा। तो 2-3 साल पहले ये एक इवेंट हुआ था जिसमें हुंजा में उल्तर ग्लेशियर गए थे, जहाँ से पानी आता है। तो वहाँ पे कुछ लड़के गए थे, उन्होंने वहाँ पे जाके इनडिसेंट एक्ट किया था, लाइक नशे किए ये वो। तो विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स वहाँ पे एक मैसिव वो हुआ था, लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिसमें वो सारे के सारे जो थे वो उसके दफन हो गए थे। ये तो ये न्यूज़ में आया होगा। अगर आई डोंट नो इफ द न्यूज़ उसमें वीडियोस ट्रेंडिंग आई थी, लेकिन न्यूज़ आप कह सकती हैं गिलगित में बहुत कम ही एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, न्यूज़ में इतने लोगों को क्रिस्प नहीं मिलता इन चीज़ों में। लोगों को क्रिस्प मिलता है कि नवाज शरीफ कब आएगा, कब नहीं आएगा, इमरान खान का अरेस्ट किया नहीं किया, इन चीज़ों में क्रिस्पी मिलता है लोगों को। चलें जिब्रान, आई लव्ड हियरिंग ऑल ऑफ दीज ट्रेडिशन, दे वर सो इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लव टू लाइक कॉल यू फॉर अनदर एपिसोड। थैंक यू। लेकिन जिब्रान, अभी भी मैं सोच में पड़ा हूँ, मुझे अभी हजम नहीं हो रही है आपकी बातें, और इस पर खास तौर पे जो वीडियो आपने दिखाई है कि भाई ये सीन क्या है। कि फॉर ऑल ऑफ दोज लाइक लिसनिंग आउट देयर, जस्ट रिकैपिंग व्हाट जिब्रान सेड, कि भाई आप लाइक व्हेन यू इनहेल दोज फ्यूम्स, आप एक ट्रांस में चले जाते हो, उसके बाद आप एक बकरे के सर से खून पीते हो, एंड देन यू कम्युनिकेटिंग टू द फेरीज इन अ लैंग्वेज यू डोंट स्पीक। इट्स कॉल्ड शिना, राइट? शिना, राइट। तो ऑल्सो वो हर्ब का नाम क्या था? व्हिच दे स्मोक? नॉट आस्किंग फॉर एनी रॉन्ग। उर्दू में, असल में मेरी उर्दू बहुत वीक है, तो अब मुझे उर्दू में वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन हमारे ज़बान में उसको स्पंदर कहते हैं। स्पंदर, जो नॉर्मली हमारे घर में होती भी हैं, क्योंकि फ्रेगनेंस के लिए घर पे रखते हैं। और फ्रेगनेंस के साथ साथ आपके जो आप कह सकती हैं जो नेगेटिव वाइब्स होती है घर से, वो भी वाइप आउट हो जाती है, तो ये बिलीव किया जाता है। और उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है ऑल्दो। चलें, आई नो ताहा को तो इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, तो इसकी तो बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस एपिसोड। आई लव्ड हैविंग यू एज अ गेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।